एक कोई क्लाइंट आपके पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं, एलिवेशन लेके आते हैं कि मुझे ऐसा कर चाहिए। एक तो पूरा रिसेंटली बना है तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। राइट। अदर कुड भी बहुत पुराना बना हुआ है बट वो आगे बनेगा। तो उस टाइम पे तो आपको लग रहा है प्लॉट बहुत अच्छा है खुला खुला, बट तीनों तरफ से बिल्डिंग बन जाएगी इन फ्यूचर, तो आपका बहुत प्लॉट दबा हुआ लोकेशन माना जाएगा, विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो डिजाइन इम्पैक्ट ना हो और फिर भी मैं कुछ कॉस्ट सेविंग कर पाऊँ, सो हाउ शुड आई डू दैट? वो कैसे? सो इस अप्रोच के थ्रू जो भी एंड प्रोडक्ट आता है क्लाइंट फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, बिकॉज उस प्रोसेस से वी हैव इवॉल्व्ड, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है परफेक्टली फिट इन हो रही है। एक प्लॉट लेना है, सो व्हेन शुड ही इंट्रोड्यूस द आर्किटेक्ट? प्लॉट लेने से पहले इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, या प्लॉट ले लें, सब कुछ कर लें, देन उसको कुछ बनाना है, देन आर्किटेक्ट शुड कम इन? आप देखेंगे कि आज की डेट में मटेरियल्स इतने अवेलेबल हैं, सो यू कैन नॉट इवन गेस द प्राइस की आपको दो मटेरियल सेम दिखेंगे, एक का प्राइस इज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट, एक का 300। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोस्ट कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स पीपल डू व्हाइल डूइंग प्लानिंग ऑफ योर बिल्डिंग? आई वुड से कि लोग ओवर कर देते हैं। Hello everyone, welcome back to our channel, the Design and Build Show, where we celebrate each and every win of our architects and designers. मेरा नाम है अमरदीप. So today's guest, our architect guest is Mr. Varad Singhal. Young architect, works on minimalistic and elegant design philosophies. So now what you will get out of this episode is, one is the Vastu, you'll get a lot of Vastu tips, you'll get how to buy a plot, and when an architect should enter your project. Enjoy the show. So, hi Varad. Hello. Welcome to the Design and Build Show. Thank you for coming. So, start करते हैं कि what is your actual background, what you have done, how it all started for the architecture. Yes. जी. So initially, after my 12th, I was very confused to choose between architecture and engineering. That was the most common option. Okay. So I didn't wanted to pursue engineering. So architecture was at that point the only option I could go forward for. So I took a drop year after 12th. Okay. And then I prepared for JEE mains examination, which is in order to get a good college after 12, because that was my main focus. So then I cleared up and got a good rank, and I got my admission after 1 year in SPA in SPA New Delhi, School of Planning and Architecture, New Delhi. So after getting into architecture, I was not even sure कि उसमें क्या क्या challenges आएंगे and what all curriculum would we have to go through. So first year was a task because it was all of a sudden there were so many things happening and I was not mentally prepared कि इतना सब कुछ उसमें होगा. But during a course of time, the mindset that has been created from architecture is something that also helps in your day-to-day life and how you pursue things, how you pursue buildings, how you deal with problems. So there are multiple things that we have gone through in the course, and so that was a 5-year course, and during that we also had 6 months internship. So I did that in Bangalore with Maya Praxis. So that was the first way of dealing with clients directly, and how do we pursue the design and how do the design gets implemented on actual grounds. So if you compare academics and actual construction, so there's a lot of difference. You are also into construction, so you can connect. यही समझ आता है एक्चुअली हो क्या रहा है. बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज में क्या हमने स्कीमेटिक ड्राइंग्स बना दी या कुछ प्रिपेयर कर दिया, बट इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दैट इज मोर ऑफ अ कि वर्किंग ड्राइंग्स आप साइट पर भेजते भी हो, एंड यू हैव टू ऑल्सो क्रॉस चेक जो आपने डिजाइन बनाया दैट इज बीइंग इंटीग्रेटेड ऑन साइट. आप कितना भी अच्छा डिजाइन बना दो, इफ इट इज नॉट बीइंग डन ऑन साइट देन देयर इज नो पॉइंट. सो मैंने डिफरेंस ये देखा है, जब हम कॉलेज में होते हैं और फिर हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो बिल्कुल ही वर्ल्ड अपार्ट हो जाते हैं. ट्रांजिशन बिल्कुल अलग दिखता है कि आप कॉलेज में तो आपको लगता है मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ये क्रिएटिविटी वो क्रिएटिविटी, जब आप एक्चुअल में आते हो तो बिल्कुल ही अलग होता है. तो दैट उसमें एक फैक्टर क्लाइंट का पर्सपेक्टिव भी है, बिकॉज
जब आप कॉलेज में है सो यू डोंट हैव एनी क्लाइंट कि आपको कैसा डिजाइन करना है, दैट इज अप टू योर इमेजिनेशन. राइट. बट इन एक्चुअल टर्म्स क्लाइंट बोलेगा नहीं मेरे को तो ये बॉक्स डब्बा डिजाइन ही चाहिए, मेरे को यही करना है. तो देयर इज अ डिलेमा कि अब आप उसकी सुनो या अपनी क्रिएटिविटी लगाओ. सो वो धीरे धीरे व्हेन यू क्रिएट दैट ब्रांड देन पीपल वुड एक्सेप्ट कि हाँ ये कुछ डिफरेंट अप्रोच है, सो वी शुड अलाइन टू व्हाट द अदर आर्किटेक्ट इज सेइंग. So that is a process that you have to go through. So generally से बोलते हैं ना कि client is always right. हाँ. तो भैया उसकी मान लो आप जो कह रहे हैं. मतलब एज एन आर्किटेक्ट इट इज आवर मेन जॉब कि जो क्लाइंट के दिमाग में है वी हैव टू गेट इट डाउन ऑन पेपर. So that is the first task. Right. But parallelly we also focus on कि how we can create a built and unbuilt relationship. तो आजकल जैसे typically builder floors में आपने देखा होगा कि पूरा cover कर देते हैं. So our approach is और एज एन आर्किटेक्ट्स अप्रोच इज समथिंग कि हम उसमें ओपन एरियाज भी इक्विप करें सो दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, बिकॉज उसी से एक लुक एंड फील चेंज होता है ऑफ द स्पेस. सो गुड लाइटिंग, गुड वेंटिलेशन, एंड वी ऑल्सो प्रैक्टिस हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द बिल्डिंग. सो वो क्लाइंट की एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. वी इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. तो काफी डिफरेंट अप्रोच होती है और फिर आउटपुट भी डिफरेंट दिखता है. वो बनने के बाद और लोगों को लगता है हाँ भाई कुछ था वो विजन, अब एक्चुअल दिखा है. राइट. बट जनरली क्लाइंट का क्या नहीं, आप ये है फुल बना दो, हमें तो इतने BHK चाहिए, एक कमरा और बढ़ा दो. उन्हें नंबर ऑफ रूम्स पर लोग अटक जाते हैं कि नहीं इतना इतना हमें करना है. तो देयर इज अ डुअल अप्रोच इन दैट. आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो अभी? सो राइट नाउ वी आर मोस्टली इनटू रेजिडेंशियल्स. And we are also doing hospitality projects and commercials as well. Okay. So broadly, we are doing all kind of. So commercial is what type of commercial you are doing? Commercial, we are doing retail, plazas and offices. Okay. Yes. Right. So offices would include interiors as well and designing the whole premises of a IT building or master planning for that. So as an architect, we are generally involved from the initial stage. So after the land is purchased and all those things are done, so we come into the picture. So वहाँ से लेके up till the final execution, there are multiple steps through which we have to go through and achieve what we want. So now, when you are already experienced with different type of projects, yes. As you said, residential भी कर रहे हो, commercial भी कर रहे हो. So what is your design philosophy? How you move forward to start off a project? My design philosophy इनिशियली लाइक फर्स्टली वुड बी कि जो क्लाइंट चाह रहा है उसको वो फुलफिल होना चाहिए, बिकॉज देन ओनली ही वुड बी कमिंग टू अस. अगर वो कुछ चाह रहा है, आप अपने आइडियाज, यू हैव टू पिच योर आइडियाज, बट यू हैव टू मेक अ कोलैबोरेशन कि जो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है, जो क्लाइंट का माइंडसेट है, यू हैव टू फुलफिल दैट एंड यू हैव टू इम्प्रोवाइज द डिजाइन. सो माई डिजाइन फिलॉसफी इज इनिशियली बेस्ड ऑन द क्लाइंट कि क्लाइंट की जो नीड है वो फुलफिल हो जाए. देन वी इंटीग्रेट energy वाले terms, green building वाले terms, how we can create with the environment, how we can create a good landscape scheme, how then we keep on zooming into each spaces कि interior wise उसको हम कैसे balance out करें, how we can use natural color scheme, neutralized color scheme, earthy color scheme. So because of those elements, it is something जो everlasting वाला डिजाइन क्रिएट होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरडू ना करके, इट इज बेटर टू कीप इट मिनिमल. Correct. So if I have to define some keywords, so it would be like minimal, elegant, use of neutral color scheme, and it has to be a design which is something everyone can accept कि हाँ this is a workable design. बहुत ज्यादा ups and downs ना करके, like keeping it a straightforward and client oriented design. तो इवेंचुअली उसका जब डिजाइन डेवलपमेंट होता है, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, तो विद टाइम अपने आप भी डिजाइन कुछ ऐसा ही निकल के आता है कि डिजाइन इवॉल्व होता ही है. बिल्कुल. करेक्ट. राइट. सो कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो आप स्टार्ट करते हो, बिल्कुल जैसे एक प्रोजेक्ट आया, सो आपके पास क्लाइंट आ गया, सो हाउ यू गो अबाउट इट कि हम इसको पहले एस्थेटिकली देखेंगे या हम वास्तु देखेंगे या हम दोनों को बैलेंस आउट कैसे करेंगे, वो कैसे करते हो आप? So initially, like in the first meeting, our process is कि सबसे पहले हम क्लाइंट से सारे इनपुट्स लेते हैं. Okay. About the plot, about the land जो भी उनका है, या इंटीरियर्स है तो about the area. So उसके बाद we take all the pointers, उनकी requirements क्या है.
बिकॉज सबसे फर्स्ट मीटिंग इज मोर अबाउट गेटिंग टू नो द क्लाइंट. तो क्लाइंट अपने सारे इनपुट्स देते हैं, सब कुछ बताते हैं, एंड आफ्टर दैट जो मीटिंग्स होती हैं देन वी स्टार्ट विद अ बेसिक जोनल डिजाइन. Okay. So in order to get a clarity जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए, तो zonal design is something कि आप zones define करते हैं. For example, if I take a 500 square yards plot which is north facing or northeast facing, so you have to define the zones कि इस zone में we'll put the dining, we'll put the kitchen, we'll put the drawing room, we'll put the bedroom, and at that point only we integrate the vastu thing. क्योंकि वास्तु अगर आप देखेंगे it is how the sun moves. वास्तु is ऐसा कोई, वास्तु इज ऑल्सो साइंस. इट इज नॉट समथिंग कि आप कुछ अलग ट्रेडिशनल वो है. दैट इज ऑल्सो साइंस कि व्हेन द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो जो स्पेसेस आप जिस टाइम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वास्तु डिजाइन है. कि आपका जैसे साउथ वेस्ट वाला जोन है दैट इज फॉर मास्टर बेडरूम, साउथ ईस्ट इज फॉर किचन जिसे हम अग्नि कोड कहते हैं. तो हम वो सारे जोन्स उसी टाइम पर डिफाइन कर देते हैं कि किचन यहाँ नहीं है, बेडरूम यहाँ, ड्राइंग रूम यहाँ. तो वंस द जोन्स आर डिफाइंड तो हम एक स्कीमेटिक लेआउट बनाते हैं. So schematic layout is आपका सिंगल लाइन ड्राइंग कि आपके सारे स्पेसेस हमारे पास डिफाइन हो जाए और उसमें सारे रूम के साइजेस दिख जाए and how they are interconnected and how the things are working on. So then we have the client meeting, client के feedback आते हैं, then to back and forth 2-3 meetings होती हैं. Then after that we call it कि एक first cut हमारा डिजाइन बन गया है. तो उसमें until now it is all 2D. It is the basic प्लान जिसे हम नक्शा बोलते हैं हिंदी में कि नक्शा आपका बन गया है. तो वंस द फ्लोर प्लान इज कंप्लीटेड फॉर वन फ्लोर और मल्टीपल फ्लोर्स जो भी वेरिएशन है, देन वी गो हेड विद द 3D ऑफ एक्सटीरियर. ओके. क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग इनिशियली बोलते हैं आप हमें दिखा दो बाहर से कैसा दिख रहा है, बट आवर प्रोसेस और एज अ जनरल प्रैक्टिस इज कि आप पहले प्लान हम फाइनलाइज करते हैं, देन वी गेट ऑन टू द एलिवेशन. एलिवेशन में भी वी फॉलो अ सिमिलर हायरार्की. सबसे पहले बेसिक बॉक्स एलिवेशन, कैसे बॉक्सिंग आ रही है, हाउ वी डू द इन एंड आउट. बिकॉज आप हमारे कोई भी डिजाइन देखेंगे इट्स नॉट सिंपली कि बस फ्रंट फसाडे से बना दिया. इट्स मोर ऑफ हाउ वी प्ले विद द वॉल्यूम. कि आप एलिवेशन मतलब उसको प्लेन ना रख के, इट इज मोर ऑफ कोई बॉक्स आउट आ रहा है, कोई इन्वर्ट जा रहा है, थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है, थोड़ा एंगल्ड हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन जो क्लाइंट का भी इनपुट्स आते हैं. इंडेंट आउट क्रिएट करते हैं क्योंकि उससे ही वो इंटरेस्टिंग फैक्टर प्लग इन होता है. So 3D में भी वो बैक एंड फोर्थ 3-4 मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग एलिवेशन कॉन्सेप्ट्स आते हैं. देन इट इज लाइक अबाउट 5-6 मीटिंग्स. वी फाइनलाइज द फ्लोर प्लान कि दिस इज योर फाइनल फ्लोर प्लान एंड दिस इज द एलिवेशन. This is how your house is looking from outside in 3D and this is the floor plan. So once that is all completed, so we call that the schematic stage. कि आपकी एक stage complete हो गई है कि we are heading towards one direction कि हमें ये सब करना है. Then parallelly we apply for जो भी authority के approvals हैं, और जब authority के approvals आ जाते हैं then we start with construction. So working drawings, फिर जैसे जैसे construction होता है for civil, plumbing, इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग, दैट वो पूरा आफ्टर द प्रोसेस. बट जो इनिशियल स्टेप है उसमें जनरली क्लाइंट को क्या होता है कि नहीं जल्दी से हमारा आप बता दो 3D कैसे बन के आ रहा है, बट मेरे को उसमें क्लाइंट को काफी वो देना पड़ता है कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस बिकॉज दैट इज वेरी क्रूशियल. मैं करने को वी कैन डू इट इन वन डे कि आपने बताया हमने 3D बना दिया, बट दैट वोंट बी कस्टमाइज्ड एज पर द क्लाइंट. सो थ्रू दिस प्रोसेस जो एंड प्रोडक्ट आता है दैट इज कस्टमाइज्ड एंड व्हाट द क्लाइंट इज वांटिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच. सो इस अप्रोच के थ्रू जो भी एंड प्रोडक्ट आता है क्लाइंट फुल्ली सेटिस्फाइड होता है बिकॉज उस प्रोसेस से वी हैव इवॉल्व्ड. तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है परफेक्टली फिट इन हो रही है, वो साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है. तो जनरली उसका आउटपुट डिफरेंट आता है एज पर द क्लाइंट आता है. So right now we have been doing this kind of a process and it is working out very well for our projects. So एक वास्तु का क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड मेरा. जैसे आपने कहा वास्तु के लिए हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं, राइट? तो जैसे हमारा 4 साइड ओपन है या 3 साइड ओपन है, वहां तो हम ये मैनेज कर लेते हैं. तो जो छोटे प्लॉट्स हैं, अब 100 गज मान लो, 200 गज मान लो, वहां पे आप इसको कैसे मैनेज करते हो? क्यों क्लाइंट तो कहता है मुझे वास्तु चाहिए, सो हाउ यू मैनेज दैट? नहीं, वास्तु से जोन्स डिफाइन होता है. जैसे आपका ऑब्वियसली 1 या 2 फेसिंग तो ओपन हो गई, जो भी फेस ओपन है वहां से हम अपनी मैक्सिमम वेंटिलेशन वहां से रखेंगे. और अगर प्लॉट छोटा है या बैक साइड या साइड से वेंटिलेशन नहीं है, देन वी इंट्रोड्यूस अ कोर्टयार्ड. ओके. सो इन
मेजर ऑफ जो भी हमारे डिजाइन है, मेजरली दे हैव अ कोर्टयार्ड. Okay. सो कोर्टयार्ड एज पर वास्तु शुड बी प्लेस्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस. Okay. उसका रीजन ये है कि ईस्ट की एनर्जी फ्लो आपके हाउस में आनी चाहिए, जो मॉर्निंग लाइट भी होती है और ईस्ट का जो एनर्जी फ्लो है. तो इफ देयर इज अ स्पेस ऑन ऑल द साइड्स देन इट इज इजी कि आप उससे वेंटिलेशन कर सकते हो. अदरवाइज वी क्रिएट अ शाफ्ट, यू कैन कॉल इट अ शाफ्ट, यू कैन कॉल इट अ कोर्टयार्ड. तो उस कोर्टयार्ड को दैट इज इक्विप्ड विद लैंडस्केप डिजाइन एंड एलिमेंट्स, तो उसके थ्रू इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एस्थेटिक्स, वास्तु and also the natural light and ventilation. Okay. बाकी जो वास्तु zones है that does not depend on plot size. वो तो जो भी आपका plot है उसमें we create angles जो वास्तु का एक proper आता है कि north of northeast, south of southeast ऐसे करके. So we create the grid, उसके हिसाब से we define the zones. So वास्तु can be integrated in any design. It is not something कि plot छोटा है या बड़ा है उसमें नहीं कर सकते, but जनरली इट इज समथिंग कि कितने एक्सटेंट तक हम वास्तु पर. कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है ना वहाँ पे कि भाई आपको किचन लेके जाना है, आपके उस फ्रंट ही छोटा है, 20-25 फुट का फ्रंट है, तो आप क्या क्या लेके आओगे वहाँ पे, तो वो पॉसिबिलिटी खत्म होने लग जाती है. नहीं, उसमें क्या होता है वास्तु में भी there is like a best option, then there is like उससे second best वाला option. Second best होता है. So like kitchen के लिए साउथ ईस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन कि आपको साउथ ईस्ट में रखनी है अग्निकोड में. अगर साउथ ईस्ट नहीं हो पा रहा देन वी टेक इट टू द नॉर्थ ईस्ट एज अ सेकंड ऑप्शन. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो फिक्स्ड है, मतलब प्रेफरेबली इट वुड बी इन द साउथ ईस्ट, अदरवाइज वी पुश इट. जैसे एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में पूजा आना ही है, तो हमारा डिजाइन उसी हिसाब से रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक ब्लॉक पूजा का आना है और कोई वॉशरूम टॉयलेट नहीं आना. दैट इज ऑल्सो अ थिंग इन वास्तु कि नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट नहीं आना चाहिए. तो जो बिल्कुल क्रॉस है कि ये होना ही नहीं चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा आना चाहिए, वो तो इंटीग्रेट हर डिजाइन में होना चाहिए. बट जिसमें ऑप्शंस है कि आप किचन को या तो यहाँ या यहाँ तो दो ऑप्शंस में प्लेस कर सकते हो, देन वी प्ले इनटू दैट. राइट, बढ़िया. तो एक कोर्टयार्ड एक छोटे प्लॉट में हम डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है? पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि जनरली आप शाफ्ट तो देते ही हैं छोटे प्लॉट में भी. तो उसको अगर आप अच्छे से इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स ट्रीट करें, कुछ लैंडस्केपिंग करें, तो वो एज अ एलिमेंट लगेगा, नॉट अ शाफ्ट. जनरली लोग क्या करते हैं, शाफ्ट बना दी, वहाँ कपड़े पड़े हैं, वॉशिंग मशीन रख दी, गंदा हो रहा है वहाँ, तो वो शाफ्ट. हमने जो शाफ्ट देखी हैं उसमें तो एसी लगे होते हैं ज्यादातर. हाँ. और वो एक छोटा सा वेंटिलेटर दिया और खत्म हो गया. तो वो तो बिल्कुल ही एक हॉन्टेड स्पेस बन जाता है, वो तो एक डेड स्पेस हो जाता है. बट उसके अलावा द अप्रोच इज कि या तो आप सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, दैट इज वन ऑप्शन. अदरवाइज यू टेक ऑल द स्प्लिट यूनिट्स टू द टेरेस. तो आपका वो शाफ्ट, एक तो वरना हीट बहुत आ जाती है उसमें, वो आप यूज ही नहीं कर सकते. तो अगर वो टेरेस पर आते हैं सारे आउटडोर यूनिट्स, तो इट इज अ बेटर ऑप्शन कि आपको वो एक एरिया मिल जाता है एंड देन यू कैन प्ले विद इट. क्योंकि अ मिनिमम ऑफ अगर आप 10x8 फीट का भी एक स्पेस देते हैं विच इज डूएबल इन 100 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट, तो आप 10x8 का इज अ गुड इनफ मिनिमल साइज कि आप उससे यू कैन क्रिएट द कोर्टयार्ड एंड यू कैन इंटीग्रेट द एनर्जी थिंग्स, इंप्रूव द एस्थेटिक्स. तो इट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच कि आप क्या कर रहे हैं. ऑल्सो द एंड यूजर की वो उसको फॉलो करे कि व्हाट वी हैव डिजाइन्ड. ऐसा नहीं कोर्टयार्ड बना के वहाँ यूज ही नहीं हो रहा है. राइट, आई कैन विजुअलाइज कि जो आप कह रहे हो ना, अगर आप फसाड उसकी जो वॉल्स है उसको आप एक बेटर तरीके से. आजकल आपने देखा होगा जाली वॉल्स भी काफी ट्रेंड में है, काफी आ रही है. सो इन आवर रीसेंट प्रोजेक्ट in Noida, so we have also used the jali wall in elevation. अच्छा. So that also provides ventilation, improves the aesthetics. तो मतलब वो ओवर भी नहीं होना चाहिए, but it has to be something कि forced design नहीं होना चाहिए. That is the key. ऐसा ना लगे आपने एक ही डिजाइन में सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया. Right. It should be balanced design. Correct. So इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बंदा है, उसने अब एक प्लॉट लेना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी, जो भी बनाना है, एक प्लॉट लेना है. सो व्हेन शुड ही इंट्रोड्यूस द आर्किटेक्ट? प्लॉट लेने से पहले इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए या प्लॉट ले लें, सब कुछ कर लें, देन उसको कुछ बनाना है, देन आर्किटेक्ट शुड कम इन? व्हाट शुड बी द स्टेज? इट डिपेंड्स. इट इज बेटर कि अगर प्लॉट से पहले एक मीटिंग हो जाती है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है. मतलब जनरली इट इज अ प्रैक्टिस कि क्लाइंट के पास प्लॉट है, देन ही गोज टू द आर्किटेक्ट. बट इनिशियली अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो वी कैन, इफ वी हैव 2-3 ऑप्शंस लैंड में, जनरली के 3 ऑप्शंस हैं, हमें कौन सा लेना है. तो हम एक तो फेसिंग में देख सकते हैं कि नॉर्थ है, ईस्ट है, क्या साइजिंग है उसका. तो फेसिंग अगर बेटर लगती है, विच क्लाइंट, आजकल क्लाइंट्स को भी देखिए आप, सब कुछ नॉलेज है, बिल्कुल, कौन सा डायरेक्शन है, कैसे क्या लेना है. तो जनरली
दे कैन टेक आवर रिकमेंडेशन कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं विच इज अ बेटर वन, या किस में डिजाइन ज्यादा बेटर बन सकता है. अच्छा. बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका फ्रंट इज टू डेप्थ का रेशो क्या है. जनरली इट हैज टू बी 1:2. सो अगर आपका 30 फीट का फ्रंट है, सो द डेप्थ शुड बी 60 फीट. दैट इज आइडियली 30-60 प्लॉट जिसे हम बोलते हैं, जो 1800 स्क्वायर फीट का होता है, 200 गज जिसे हम बोलते हैं, 200 गज का प्लॉट. तो वो होता है. बट बिल्डर्स या जो अथॉरिटीज हैं वो जनरली करते हैं 30-70 कर देते हैं. तो उसमें क्या है, फ्रंट तो उतना ही रहा, डेप्थ ज्यादा बढ़ गई. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपका फ्रंटेज ज्यादा हो. ये तो एक बेसिक थंब रूल है. राइट. एंड डायरेक्शन इज अ गुड वन. तो वी कैन कंपेयर कि कौन सी लैंड बेटर है. बाकी प्राइसिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है. क्योंकि आर्किटेक्ट जब इन्वॉल्व होगा तो आई गेस वो एक बेसिक डिजाइन तो विजुअलाइज कर ही लेगा. हाँ, करेक्ट. जब लैंड देख के. बिल्कुल. और उसके आसपास की पेरिफेरी क्या है, आसपास की नेबरहुड क्या है, वो कॉर्नर है या नहीं है, काफी डिसाइडिंग फैक्टर है. अब अगर आप दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो साउथ वेस्ट अगर कॉर्नर प्लॉट है जी, तो उसमें हीट गेन बहुत ज्यादा होगी. राइट. वो इसलिए कि जो आपका आफ्टरनून सन है, आफ्टर 2 o'clock से लेके इवनिंग तक डायरेक्टली बिल्डिंग पर आएगा, तो हीट गेन बहुत ज्यादा होगी. और कंपेयर टू अ नॉर्थ ईस्ट प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट, दोनों केस में नॉर्थ ईस्ट में सन एकदम मिनिमल आएगा, तो हीट गेन आपका काफी कम होगा. दोनों कॉर्नर प्लॉट्स हैं, बट डायरेक्शन की वजह से हीट गेन का जो इम्पैक्ट है वो साउथ वेस्ट पर ज्यादा है, विच इवेंचुअली इंक्रीजेज योर एसी लोड, देन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो वो पूरी साइकिल फिर कंटिन्यूस आ जाती है. बट ऐसा नहीं है अगर साउथ वेस्ट प्लॉट है तो आप डिजाइन अच्छा नहीं कर सकते. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. अगर साउथ वेस्ट है सो देयर आर सर्टेन ग्लास जिसका एक U कोएफिशिएंट होता है. देयर इज अ SHGC ग्लास. ओके. जो भी आपकी रेडिएशंस आ रही है फ्रॉम द सन, सो दे अलाउ द डे लाइट बट नॉट द हीट गेन. अच्छा. उससे आपकी लाइट अंदर आती है थ्रू द ग्लास, बट हीट गेन नहीं आती. तो हर चीज का देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. थोड़ा सा कॉस्ट प्लस माइनस उसमें आता है. क्योंकि ये हमने तो सुना है कि डबल ग्लास लग जाता है. जो हाँ, डबल ग्लास ही होता है. वो डबल ग्लेज्ड ग्लास जिसे बोलते हैं. ओके. ओके. DGU, डबल ग्लेज्ड यूनिट. तो उसमें भी सर्टेन वेरिएशंस आते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितनी डे लाइट ट्रांसमिट कर रहा है और कितनी स्टॉप कर रहा है. ओके. अच्छा. क्योंकि क्या है, जनरली एलिवेशन में ग्लास थोड़ा सा बेटर लगता है, बट आवर अप्रोच इज ऑल्सो कि हम ग्लास को ओवरडू ना करके ग्लास प्लस स्टोन का एक बैलेंस क्रिएट करें. इट शुड नॉट बी कि जैसे टिपिकली गुड़गांव में हो रहा है फुल ग्लास लगा दिया. वो कोई डिजाइन वैसे नहीं है. DLF की मैक्सिमम बिल्डिंग्स आप देखेंगे फुल ग्लास है, तो उसमें पूरे टाइम एसी लोड रहता ही है, क्योंकि सारी एनर्जी एफिशिएंसी तो खत्म ही होगी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. वो US UK में इसलिए वर्क करता है, वहां पे ऑपोजिट है. उन्हें बिल्डिंग गर्म रखनी है, तो ग्लास वर्क करता है कि हीट गेन होना चाहिए, तो बढ़िया है. बट इंडिया में अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली NCR देखें तो हमें यहाँ बिल्डिंग ठंडी रखनी है गर्मी, तो ग्लास इज समथिंग वी शुड अवॉइड. बट अब वो ट्रेंड में आ गया है, तो वो ट्रेंड्स हम लोग अंग्रेजों को फॉलो ज्यादा करते हैं ना. बिल्कुल. चलो आगे बढ़ते हैं. सो एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, उसके फेलियर और सक्सेस के चांसेस, जो की फैक्टर्स हो, डिजाइन टू द बिल्डिंग, फ्रॉम डिजाइन इंटीग्रेशन टू द बिल्डिंग फॉर्म इट इज डन. तो क्या की फैक्टर्स आपको लगते हैं कि की फैक्टर्स? एक तो इनिशियली डिजाइन जो आप कर रहे हैं, इट शुड बी प्रैक्टिकल ऑन साइट, फीजिबल डिजाइन हो. ऐसा नहीं आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कर दो जो कॉन्ट्रैक्टर ना समझ पाए, या आपने विजुअलाइज कुछ करा बट एक्चुअल ड्राइंग्स कुछ और है. तो वो गैप नहीं आना चाहिए. दैट इज द मेन की. और जो साइट सर्वे वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है साइट्स पर, यूजुअली लार्जर साइट्स में जो माउंटेन्स पर है या और कोई साइट्स है, सर्वे प्लान सही होना चाहिए. बिकॉज अगर सर्वे प्लान इज द बेस मैप फॉर अस, तो अगर वो गलत है या हमने कोई ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स दी है विच इज नॉट एज पर द साइट, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो बाद में उसमें फिर चैलेंजेस आते हैं. एंड ऑल्सो आई वुड से क्लाइंट को जो आर्किटेक्ट बता रहा है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है वो उतना सुनते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है हाँ ठीक है हमें भी सब सारी चीजें पता है. बट व्हेन वी आस्क देम कि आप इसको एक बार फॉलो करो प्रोसेस को एंड जस्ट वेट फॉर द एंड रिजल्ट, क्योंकि आपने सुना होगा कि मिठाई और घर बनते हुए नहीं देखना चाहिए. तो वो इसलिए ही है क्योंकि जब तक वो बन रहा होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लाइंट को लगता है ठीक है अभी कुछ, उसे वो विजुअलाइज नहीं कर पाते. मतलब उनकी गलती नहीं है, बट दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज. बट वो बनता है, देन इंटीरियर्स होता है, फिनिशिंग होती है, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है देन दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ जो आप कह रहे थे दैट वाज करेक्ट. सो इट इज बेटर कि आप विजुअलाइज जो कर रहा है, लाइक एज एन आर्किटेक्ट,
उसको थोड़ा सा फॉलो करे, बिकॉज ही इज लीडिंग इट इन द राइट डायरेक्शन. ही हैज द एक्सपर्टीज. हाँ, क्योंकि क्लाइंट्स क्या होता है जनरली थोड़े से वहाँ एग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं हमें तो ये अभी सही नहीं लग रहा, आप तो कुछ और बता रहे थे, एट मिडिल ऑफ समथिंग हो जाता है. और हम भी उतना, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ उन्हें वो क्लैरिटी नहीं आती. राइट. बट वंस इट इज डन देन दे आर लाइक नाउ इट इज व्हाट वी वांटेड. कि कॉमन मिस्टेक्स व्हिच क्लाइंट डू एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, जब वो आपके पास आया, एक प्लान क्रिएट कराना है उसने और वहां पे वो गलतियां करी, वो कैसी गलतियां हो सकती हैं, क्या करते हैं? वो गलतियां ये होती हैं कि क्लाइंट जो हम बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता. जैसे मैं आपको अभी भी बता रहा था, दे आर मोर फोकस्ड ऑन, अगर हमने 2 BHK बनाया है उस वाले लैंड में, दे वुड से 1 बेडरूम और बढ़ा दो, 3 कर दो. अच्छा, 3 है तो 4 कर दो. दे आर मोर फोकस की नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ जाए और लिविंग एरिया और ये सब थोड़े कम हो जाए. बट जनरली आप देखेंगे एज अ फैमिली, बेडरूम्स आजकल जनरली सब सोने जाते हैं बेडरूम्स में. इट इज द लिविंग रूम दैट एक्टिवेट्स द एंटायर हाउस. या आपका जो फ्रंट में लॉन है या बैक में लॉन है, तो क्लाइंट्स का क्या रहता है कि आप नहीं हमारे बेडरूम्स बढ़ा दो, कोई नहीं लिविंग रूम कम कर दो, शाफ्ट कम कर दो, आप लिफ्ट स्टेयरकेस थोड़े से कॉम्प्रोमाइज कर लो, बट बेडरूम सबको बड़े चाहिए. फिर वॉकिंग वार्डरोब्स, उसके साथ टॉयलेट सबके साथ कनेक्टेड. तो उससे क्या मेजर और चंक ऑफ एरिया बेडरूम्स में निकल जाता है, तो लिविंग रूम का कम बचता है. तो जो क्लाइंट्स समझते हैं इस बात को, दे वुड से कि नहीं हमें एक लिविंग रूम और एक वेल इक्विप्ड एरिया चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग और वेंटिलेशन और ये सारे फैक्टर्स. तो वो ओवरडू इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग, कि वो ओवरडू नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का. जो जितना आपका पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए. इट शुड नॉट बी समथिंग कि 4 BHK चाहिए और आप 2 बना रहे हो. दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो. बट जितना आपको एक मिनिमल चाहिए दैट यू शुड डू, और देन यू कैन प्रोसीड विद दैट. एक गलती तो हो गई कि वो बेडरूम्स ऐड करा दिए या करा दिए. मतलब उससे क्या होता है, देखिए टोटल एरिया तो सेम ही है. अगर आप 3 के 4 बेडरूम्स करते हो तो हर रूम से ही थोड़ा थोड़ा स्पेस कम होगा. तो इट डिपेंड्स कि क्लाइंट का प्रेफरेंस क्या है. कुछ लोगों का एकदम फिक्स्ड होता है, नहीं 4 BHK ही चाहिए, तो हम उस तरीके से फिर उसको डील करते हैं. बट जनरली क्लाइंट्स का क्या होता है, नहीं यार बेडरूम हमारा एक और बढ़ा दो, एक चलो एक्स्ट्रा बना लेते हैं, गेस्ट रूम बना देते हैं, कोई आएगा. फिर वो मेंटेनेंस बाद में होती नहीं है, मतलब उसमें काफी चैलेंजेस आते हैं. और लोग एलिवेशन में भी सोचते हैं कि क्या हम ऐसा अलग कर दे, या किसी का देख लिया तो नहीं हमें अब ऐसा ही चाहिए, तो वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. एक कोई क्लाइंट आपके पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं एलिवेशन लेके आते हैं कि मुझे ऐसा कर चाहिए. हाँ, काफी आते हैं. आजकल आप देखेंगे पिंटरेस्ट और चैट GPT. एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, डॉक्टर है वो, तो उन्होंने मतलब ऐसे डॉक्टर है तो ऑब्वियसली आर्किटेक्चर नॉलेज जो थोड़ी बहुत बेसिक उन्हें पता होगा, तो अपने घर का उन्होंने AutoCAD डाउनलोड करा. दैट इज द सॉफ्टवेयर व्हाट वी यूज. डाउनलोड करके और सारे प्लान्स वगैरह बना दिए, देन 3D सारे बना दिए अपने आप यूजिंग चैट GPT एंड ऑल ऑफ दिस. तो मतलब उनके हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड अप्रोच कि हम भाई सब कुछ करके आए हैं. बट देन वही बात आ जाती है ना, वही आप फिर खुद ही इम्प्लीमेंट करो या तो उसको. बट इफ यू आर कमिंग टू एन आर्किटेक्ट तो देन ही शुड लीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि वो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तभी वो दूसरा अप्रोच उसमें चाह रहे हैं. वो एक्सपर्टीज चाहिए उसमें. हाँ, वो एक्सपर्टीज चाहिए. तो यू हैव टू ट्रस्ट द आर्किटेक्ट, बिकॉज इनिशियली हमारा भी अप्रोच यही होता है कि पहले क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो, वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो, देन ओनली ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू कि हाँ ही इज गिविंग द राइट एडवाइस. क्योंकि आप बहुत जल्दी में क्या होता है कि एकदम से डिजाइन किया, एकदम ये हुआ, तो क्लाइंट के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता. तब क्लाइंट को डाउट होने लगता है, या वो सेकंड आर्किटेक्ट पर जाता है कि मे बी ये अप्रोच सही है या राइट. वो कंफ्यूज हो जाते हैं. So please share any of the challenges you are facing. आप जिम कॉर्बेट में भी काम कर रहे हो, so रिसोर्ट बन रहा है वहाँ पे, तो उसमें कैसा चैलेंज आ रहा है, क्या हो रहा है? अभी रिसोर्ट तो इज अंडर प्रोग्रेस बिकॉज द ड्राइंग्स हैव टू बी अप्रूव्ड फर्स्ट. बट चैलेंजेस क्या होते हैं कि साइट पर एग्जीक्यूशन सही नहीं होता. दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज इंडिया में लेबर जो आज की डेट में है उसे डील करना एक काफी चैलेंज बन चुका है. आप डिजाइन बना दो, आप इंटीरियर 3Ds दे दो, वर्किंग ड्राइंग्स दे दो, बट लेबर जनरली वही करती है जो उसके दिमाग में है. आप बता के जाओगे 2 फीट का ये छोड़ना है, वो अपने हिसाब से कुछ कर देगा इसको इधर उधर, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज कि मैंने देखो आपका और अच्छा कर दिया ये, बट मतलब वी वोंट एक्सेप्ट इट.
तो कई बार साइट्स पर क्या होता है, हमने डिजाइन दिया, सब दिया, और मॉर्निंग में मैंने विजिट करी, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करा, ड्राइंग भी सब बताया, शाम तक आप जाओ तो उसने कुछ और ही एग्जीक्यूट करा, उसके हिसाब से वो बढ़िया लगा, तो लेबर ने इनोवेट कर दिया और इनोवेट कर दिया। ओके तो वो एक काफी चैलेंज आता है, और उससे क्या है, टाइम वेस्ट होता है, मटेरियल वेस्ट होता है, और हमारा भी फिर डबल हार्ड वर्क लगता है, क्लाइंट भी उतना सेटिस्फाइड नहीं होता। तो लेबर डील करना एक काफी चैलेंजिंग टास्क है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, हमारी जितनी भी साइट्स हैं उस पे एक फुल टाइम सुपरवाइजर रहता है, ओके, जिसका काम ही ये है कि सब लेबर को डील करना है, सारे अपडेट्स देने, और हम कैमराज इंस्टॉल करते हैं सब साइट्स पर, तो लाइव अपडेट्स दिखते रहते हैं। okay. और हम हमारी जितनी भी टीम है इन हाउस जो भी हमारे पास रहती है, उनको स्ट्रिक्टली ये बताया गया कि जो ड्राइंग्स है आपको वो फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है अपना इनोवेशन नहीं करना, इनोवेशन उसमें नहीं करना है। और क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग्स रहती है, उसमें हम क्लाइंट के सारे इनपुट्स लेते हैं, देन वी क्रिएट द ड्राइंग्स, और फिर वो एग्जीक्यूशन पर आता है। क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप ड्राइंग बना रहे हो और वो एग्जीक्यूट ही गलत हो रही है, correct. या सिविल के टाइम में यू मस्ट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड कि एक कॉलम गलत प्लेस हो जाता है 1 इंच से या 2 इंच से, वो बाद में पता चलता है वो अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा। तो 12 फ्लोर या 14 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, तो बिल्कुल कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो वो चैलेंजेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑन साइट आपको इसलिए मॉनिटरिंग बहुत आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी आल्सो फोकस ऑन, कि जो हम बना रहे हैं वो सही एग्जीक्यूट हो। और क्या चैलेंज फेस कर रहे हो अब? चैलेंजेस बाकी क्लाइंट के एंड से, चैलेंज कुड बी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट, जो भी आप फेस कर रहे हो। सो रीजन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि जो देख रहा है उसको भी वो ये चीजें फेस कर रहा होगा, सो एटलीस्ट यू कैन गिव अ सॉल्यूशन टू दैट। नहीं, उसमें चैलेंज मैं ये भी बोलूंगा कि मटेरियल सिलेक्शन जो रहता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ चैलेंज, बट दैट इज अ प्रोसेस कि क्लाइंट वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। क्योंकि क्या है, आप किसी भी शॉप पर, किसी भी वेंडर पर जाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल कलर्स है, तो क्लाइंट एकदम एनालिसिस नहीं कर पाता व्हाट वुड लुक द बेस्ट। तो वहाँ पे एज एन आर्किटेक्ट एक गाइडेंस बहुत जरूरी होती है कि वहाँ पे वो गलती ना हो जाए। क्योंकि आज आप देखेंगे मटेरियल में रेंज सारी है, फ्रॉम लो मीडियम हाई, कलर्स सारे हैं, मटेरियल्स में अपने पैटर्न्स, टेक्सचर्स बहुत ज्यादा है। सो वी हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट विच इज फीजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि क्लाइंट्स का क्या होता है, कहीं पर कोई प्रोडक्ट देखा तो लगता है बस ये लगा दो हमारे में, तो दैट इज समथिंग दे शुड नॉट प्रैक्टिस। बट एक डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाएगी इससे कि आप, अगर क्लाइंट कहेगा कि आप ही चलो हर मटेरियल सिलेक्शन में, तो सबका टाइम कंस्ट्रेंट है, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे? उसमें जनरली हम लोग ये करते हैं, जैसे आप इंटीरियर्स की अगर हम बात करें तो हमने 3Ds क्रिएट कर दिए, प्लान्स क्रिएट कर दिए, फिर मटेरियल हम एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि उस दिन मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल हम फाइनलाइज कर लेंगे फॉर द एंटायर स्कीम। क्योंकि मटेरियल और कलर पैलेट स्कीम में वर्क करता है कि आप इस रूम का थीम ये है, तो इस रूम के लिए हमें जो भी मटेरियल्स चाहिए वो हम फाइनलाइज कर लेते हैं, या फिर हम मटेरियल सेगमेंट वाइज करते हैं। एक बार में टाइल्स पूरे एंटायर उसकी फाइनल कर ली, टाइल फ्लोरिंग जो भी लगना है, एक बार में वुड फाइनल कर ली, एक बार में माइका जो लैमिनेट लगना है वो फाइनल कर लिया, एक बार में हार्डवेयर कर लिया, या तो सेगमेंट वाइज या स्पेस वाइज। कि स्पेस को हम पहले कर रहे हैं तो किचन का सब स्कीम फाइनलाइज करके भी डू द मटेरियल्स, बट ऑब्वियसली उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट काफी रहता है, बिकॉज क्लाइंट कुछ लेके आ जाता है अपनी मर्जी से, या क्लाइंट को नहीं समझ आता, तो एज एन आर्किटेक्ट इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें, अपना इनपुट दें। सो जनरली हम लोग पूरा इन्वॉल्व रहते हैं उस प्रोसेस में भी, बिकॉज मटेरियल सिलेक्शन इज अ की इंग्रेडिएंट इन डिजाइन। ओके, दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि 2-3 साइंस ऐसे हो जो साइट पे अफोर्डेबल तो मुझे लग रही है, मैं एक प्लॉट देख के आया, मुझे मेरे बजट में भी आ रहा है, लुकिंग गुड, लोकेशन भी अच्छी है, बट कोई ऐसे 2-3 साइंस है कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, वो नहीं लेना चाहिए मुझे प्लॉट, या मुझे कहीं और बेटर पोजीशन में जाना चाहिए। एज एन आर्किटेक्ट इफ यू कैन सी दोज थिंग्स जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ एज अ लेमैन। उसमें एक तो मैंने आपको अभी 2 ऑप्शंस, 2 हमने डिस्कशन करे थे कि फेसिंग क्या है उसकी, नॉर्थ ईस्ट है या क्या है, राइट।
एंड उसका फ्रंट इज टू डेप्थ का रेशियो क्या है, दीज टू पॉइंटर्स, देन एडिशनली जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसमें कितनी हाइट की बिल्डिंग्स बनी हुई। अच्छा, जैसे कि आपका एक पैच ऑफ लैंड है, इफ इट इज अ सेंटर प्लॉट तो तीनों साइड उसमें प्लॉट्स होगा। ओके, तो साइड वाली बिल्डिंग्स कितनी हाइट तक की बनी हुई है, दैट आल्सो क्रिएट्स अ इम्पैक्ट कि उस पे सन पाथ कैसा वर्क करेगा। अच्छा, जैसे आपकी सेंटर बिल्डिंग है विच इज नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट साइड से आपका एक बिल्डिंग है वेस्ट से ओपन है फॉर एग्जाम्पल, इफ द वेस्ट इज ओपन वहां से आपका हीट गेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखेंगे जनरली 2 से 6 वाला जो टाइम होता है तब गर्मी ज्यादा लगती है, द सन इज डाउन, राइट, तो वो पेनिट्रेट करेगी लाइट आपके घर में। और अगर आपका ईस्ट ओपन है तो आपकी मॉर्निंग लाइट आएगी विच इज अ गुड थिंग। ओके, तो लोग जैसे होता है जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि कॉर्नर ही तो है, क्या डिफरेंस आएगा, नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट है, बट अगर आप सन पाथ और वास्तु और इन सबके हिसाब से देखें तो नॉर्थ ईस्ट इज अ प्रेफर्ड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लाइट वेंटिलेशन भी, एनर्जी वाइज भी। अच्छा, मतलब मैं साइड की जो प्लॉट्स है उनकी बिल्डिंग हाइट भी देखो, बिल्डिंग हाइट कहाँ तक जा रही है और फ्यूचर में जैसे कई बार होता है एक तो पूरा रिसेंटली बना है तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट, अदर कुड भी बहुत पुराना बना हुआ है बट वो आगे बनेगा, तो उस टाइम पे तो आपको लग रहा है प्लॉट बहुत अच्छा है खुला खुला, बट तीनों तरफ से बिल्डिंग बन जाएगी इन फ्यूचर, तो आपका बहुत प्लॉट दबा हुआ लोकेशन माना जाएगा विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और अगर हाइट बढ़ गई बिल्डिंग्स की तो और इशू क्रिएट होगा। तो वो भी एक चैलेंज आता है कि लोगों को इनिशियली लगता है प्लॉट लोकेशन अच्छा है, बट जब कॉन्टेक्स्ट की बिल्डिंग्स बन जाती हैं तो वो एक थोड़ा सा निश टाइप क्रिएट हो जाता है, तो आपके तीनों साइड्स उससे डेड हो गए, आप फ्रंट से ही वेंटिलेशन और वो सब ले सकते हो। एंड दिस इज मोर फॉर जो स्मॉलर प्लॉट्स है 100 200 300 गज वाले। इफ इट्स अ लार्जर प्लॉट तो आप प्लॉट के अंदर ही यू कैन प्ले अराउंड विद द स्पेस। एंड इफ देयर इज अ चेंज इन लेवल्स, जैसे वो हमारे थोड़े स्लोपी में होते हैं, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए प्लॉट? उसमें देखिए जनरली दिल्ली एनसीआर में तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो मड फिल हो जाता है उसमें, फिर बराबर। बट इफ आई कंपेयर इट टू अ माउंटेन वाला सिचुएशन जैसे जिम कॉर्बेट, नॉट दैट पूरा माउंटेन, लेकिन कई बार स्लोपी तो होते ही है काफी जगह, जैसे जिम कॉर्बेट वाला जो हमारा स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट है, सो दैट इज a mix of not exactly plain and not exactly hilly but somewhere in between, similar to a Dehradun terrain, थोड़ा बहुत ups and downs है। तो इसमें what we do is कि हम cut and fill बहुत minimize करते हैं, क्योंकि आप जो नेचुरल टेरेन जा रहा है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ड्रेनेज नेचुरल टेरेन से ही ट्रीट हो पाएगा कि नेचुरली पानी जैसे उससे कहाँ जा रहा है, और लेवल्स हम ऐसे क्रिएट करते हैं या तो उसको उतना कट कर देते हैं कि एक फ्लोर वहीं पर प्लेस हो जाए, सेकंड वन इज बिलो दैट, या फिर उसको उतना फिल करते हैं कि एक फ्लोर प्लेस हो जाए और सेकंड वन इज बिलो दैट। सो कट एंड फिल का एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि आप जितना कट कर रहे हो फिल भी उतना कर दो, सो दैट विद इन द साइट यू आर एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ऐसा नहीं कि आपका डिजाइन आप ऐसा बना दो कि सारा कट करना पड़ रहा है, बहुत फिल करना पड़ रहा है, सो दैट इज नॉट फीजिबल क्लाइंट के एंगल से भी और इन्वायरमेंट के एंगल से भी। आई गेस बजट भी बढ़ जाएगा उससे, बजट भी बढ़ता है, कट एंड फिल ज्यादा होगा, रिटेनिंग वॉल्स आपको बनानी है, मड फिलिंग ज्यादा हो जाएगी, तो दैट इज द रीजन सर्वे ड्राइंग जो सबसे पहले आती है, सो वी फॉलो दैट कि उसमें कॉन्टूर और लेवल्स कैसे क्रिएटेड है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट द एरियाज एंड वी अप्रोच द डिजाइन कि उसमें मिनिमल हम उसको इंटरप्ट करें जो नेचुरल फ्लो है। विच इज द बेटर लैंड? मतलब फ्लैट लैंड बहुत बढ़िया है, एक मुझे घर बनाना है एक बहुत बढ़िया सा जिसमें कि आर्किटेक्चर दिखे, इट शुड बी वेरी डोमिनेटिंग, तो वो फ्लैट लैंड बढ़िया है उसके लिए या स्लोपी लैंड बढ़िया? मतलब इसमें कोई एक सिंगल ऑप्शन नहीं है कि ये बढ़िया है ये बढ़िया, बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप फ्लैट लैंड ले रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, आपको रिटेनिंग वॉल्स नहीं बनानी जी, और आपको वो नहीं करना, बट ऑन द सेम हैंड आप उसमें भी लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं फ्लैट लैंड में। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सो उसमें ग्राउंड फ्लोर पर व्हेन यू एंटर फ्रॉम द फॉयर एरिया, so living room is 4 steps down, so when you enter in, living room is 4 steps down, then you climb back 4 steps up, then you have the dining. तो उससे क्या होता है, there is no physical barrier but there is a separate zone for each of these elements. अच्छा, तो जो transition होता है when you enter there is a drawing room and foyer, then you have living, then after that is the dining and kitchen. तो वो transition generally लोग physical wall लगा देते हैं, तो उसके अलावा if you create these levels तो वो अच्छा भी लगता है, it increases the height of the space, right, and it also creates some barrier in terms of visually
अपील की 3 अलग अलग स्पेसेस। हाँ, वो विजिबिलिटी तो बहुत बड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाता है एकदम से। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट और इसमें कोई हम कंपैरिजन वैसे करें, बट आप फ्लैट में भी लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं और आप स्लोपिंग को प्लेन कर सकते हैं, स्लोपिंग भी डील कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। हाँ, स्लोपिंग में अपना उसका इंटेंट रहता है कि आप एंट्री एक लेवल से कर रहे हैं, देन बैक साइड से देयर इज अ सेपरेट लेवल, यू कैन प्ले विद सम पोर्च को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट सम डबल हाइट स्पेसेस, या आप लेवल थोड़े से प्ले कर सकते हैं। तो स्लोपी लैंड उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ना अपने आसपास के पेरीफेरी को। फिर उसकी रो, हम जो रूफ है वो स्लोपिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैच हो जाता है। तो इट इज मोर ऑफ कि जिस टाइप ऑफ लोकेशन में लैंड प्रेजेंट है उसके हिसाब से वी अप्रोच द डिजाइन। सो अब थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बात करते हैं जी, कि मतलब मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उसमें मैं पैसे कहाँ सेव कर सकता हूँ और बिना डिजाइन को इम्पैक्ट करे हुए। कंस्ट्रक्शन को तो ऑब्वियसली हम इम्पैक्ट करेंगे ही नहीं, तो ज्यादातर क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं, एक फ्लोर कम कर देते हैं या कुछ रूम्स कम कर देते हैं, तो डिजाइन इम्पैक्ट ना हो और फिर भी मैं कुछ कॉस्ट सेविंग कर पाऊँ। सो हाउ शुड आई डू दैट? वो कैसे करूँ? आप जैसे आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, तो सिविल की एक डिफाइंड कॉस्ट है जो एक रहती है कॉस्ट, उसमें नो वन शुड कॉम्प्रोमाइज। यू शुड यूज द बेस्ट स्टील, बेस्ट आरसीसी जो भी आपको डालना है, बेस्ट ब्रिक्स फर्स्ट क्लास। तो आप सिविल तक तो देयर इज नो वेरिएशन, आप करो, बट द मेजर की पॉइंट इज इन द इंटीरियर्स। आप फ्लोरिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, फॉल सीलिंग कौन सी लगा रहे हैं, वॉल फिनिशेस क्या लगा रहे हैं, तो उसमें आप कॉस्ट कट कर सकते हैं। ओके। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किचन और वॉशरूम्स में सबसे ज्यादा अमाउंट लगता है, क्योंकि प्लम्बिंग का पूरा काम है, टाइल्स भी है, एंड यू यूज द बेस्ट हार्डवेयर, यू यूज द बेस्ट सैनिटरी। तो उसमें व्हाट वन शुड डू इज बैलेंस आउट, थोड़ा सा उसको कर सकते हैं। जैसे मास्टर बेडरूम है, उसको आप थोड़ा सा हाई एंड रखना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर सम हायर कंपनी में, ऐसे कोई नाम स्पेसिफिक नहीं ले रहा, बट यू कैन गो फॉर सम हायर सेगमेंट। बाकी पाउडर रूम आप थोड़ा हायर रख सकते हैं कि आपके गेस्ट आ रहे हैं, कोई आ रहा है। बाकी जो गेस्ट रूम्स हैं, कोई और जो रूम्स कम यूज हो रहे हैं, उसमें आप थोड़ा मीडियम रेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है, और उससे क्या है, आपको दोनों टाइप का आपको यूजर एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो यू कैन क्रिएट अ बैलेंस। सेकेंडली, आप देखेंगे कि आज की डेट में मटेरियल्स इतने अवेलेबल है, सो यू कैन नॉट इवन गेस द प्राइस की आपको दो मटेरियल सेम दिखेंगे, एक का प्राइस इज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट, एक का 300, एंड यू कैन नॉट इवन डिफरेंशिएट एज अ लेमैन कि इसमें भाई क्या डिफरेंस है, बट वंस यू टच इट, वंस यू लिफ्ट इट, देन यू कैन डिसाइड कि हाँ दिस वन इज बेटर। राइट। तो यू शुड स्मार्टली सेलेक्ट द मटेरियल्स, क्योंकि लेबर कॉस्ट मोर और लेस फिक्स रहती है। आप टाइल चाहे 100 रुपए किलो, 200 रुपए की, लेबर कॉस्ट आपकी फिक्स है, लेबर तो उतने ही पैसे लेगी। तो आप अगर परचेजिंग में थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं या एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हायर सेगमेंट, कुछ लोअर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, आप अपने लिविंग रूम में इफ यू आर यूजिंग इटालियन, तो आप बाकी रूम्स में कोटा स्टोन या कटनी या कोई और वेरिएशंस या टाइल्स यूज कर सकते हैं। तो एज अ टोटल एवरेज आपका अच्छा आ जाता है, यू ऑल्सो हैव अ मिक्स ऑफ luxury, medium and these kind of materials. कलर वेरिएशंस आ सकते हैं। हाँ, और वॉल्स पे some walls you can do paint, कुछ पे पैनलिंग्स, तो सबका आप एज अ होल कॉस्ट कट भी हो जाता है, एंड ऑल्सो ऐसा आपको प्लेन भी नहीं लगेगा कि यार हमने तो कुछ करा ही नहीं इसमें। तो वो बैलेंस क्रिएशन इज समथिंग एन आर्किटेक्ट हैज टू गाइड, कि आपको बेस्ट फिट वो करके दे विच इज कस्टमाइज्ड एज पर योर अप्रोच। Yes. इसके अलावा और कहाँ पैसे बचा सकता है क्लाइंट? बाकी तो मतलब जैसे सर्विसेज में कहीं पे कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं कि हम कुछ गलती कर देते हैं? नहीं, लूप होल्स नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग बेस्ट क्वालिटी ही करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका हो गया, देन इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, क्योंकि वही बिल्डिंग की लाइफ डिफाइन। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हम बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सीधा आता है ये महंगा है, यही अच्छा हो, है ना, कि भाई यही इसी पे चले हो सीधा। तो उसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट करो कि ये नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं है। मैंने रिसेंटली अपने होम का और ऑफिस का इंटीरियर कराया था। अच्छा। तो आई वाज नॉट ब्रांड ओरिएंटेड कि मुझे ये ब्रांड लगाना है, आई वाज क्वालिटी ओरिएंटेड कि मुझे क्वालिटी अच्छी लगानी। सो हाउ शुड आई गेट दैट क्वालिटी? हाँ, क्योंकि क्या होता है, एज अ लेमैन या एज अ कस्टमर,
उन्हें लगता है ये ब्रांड मार्केट में चल रहा है, ठीक है, वी वुड गो फॉर इट, बट वो ब्रांड के एज एन एग्जांपल 30-40% वो एक ब्रांड का अपना एड ऑन लेंगे, बिल्कुल। बट वी आर इन द मार्केट, वी हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सो वी नो कि कौन उसमें क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो वी मतलब क्लाइंट उतना एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लगता है पता नहीं उसका नाम नहीं है, बट फॉर माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड माई हाउस I have used products which are not company oriented, Okay. but they are good quality products. Right. So वहां से आपका 20-30% कॉस्ट कट इजीली हो जाता है। तो you are guiding the clients कि ये वाला प्रोडक्ट आप यूज कर लो। हाँ, so we are guiding the clients. क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में जो ब्रांड ज्यादा बन गए हैं उनका एक लेवल क्रिएट हो चुका है, एंड दे चार्ज अ मिनिमल अमाउंट की, इतना हमारा बेंचमार्क है। वो तो मार्केटिंग कॉस्ट है। हाँ, वो तो आपको ब्रांड का नाम याद हो गया है, बिल्कुल, अब वही चीज मांगते हो जाके, और कुछ चाहिए। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते नहीं, हमें स्पेसिफिकली यही लगाना है, तो वो फिर उस हिसाब से होता है। ओके। अदरवाइज हमने वी हैव डन इंटीरियर्स आल्सो, जहाँ पे हमने काफी बजटेड कॉस्ट में इंटीरियर दिया है, बट द क्लाइंट हैज टू अग्री कि इट इज नॉट अ ब्रांड ओरिएंटेड इंटीरियर बट अ क्वालिटी ओरिएंटेड इंटीरियर, तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। मतलब यू कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई कि ये इसमें कोई आपने कुछ कम अच्छा लगाया है या एक एवरेज लगाया है, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर हाई एंड ही आपको दिखता है, एंड इट इज अ गुड प्रोडक्ट। आप देखेंगे जनरली प्रोडक्ट सब एक ही जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है, टाइल्स गुजरात से आ रही है, सब मेजर टाइल्स गुजरात से आ रही है, जिसका ब्रांड है उसने अपना ब्रांडिंग लगा दिया, जिसका नहीं है वो नॉर्मल उसको सेल कर रहा है, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो वहां से बैक साइड से नहीं आ रहा है, इट इज अप टू यू कि आप डिसाइड क्या कर रहे हैं। तो उससे बहुत वेरिएशन आ गए, 20-30% इज अ गुड अमाउंट, या आप अगर 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 20-30 लाख आपके इजीली वहां पर बच सकते हैं। एक्चुअली वेरी बिग अमाउंट, अगर वो आप बचा लो तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आई वुड आल्सो रेकमेंड, लोग ये कहते हैं कि हम आर्किटेक्ट की फीस क्यों दें, करेक्ट, या हम उसको क्यों करें, बट आर्किटेक्ट जितनी भी फीस ले रहा है, नॉट कोटिंग की कौन कितना मार्केट में वो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं क्लाइंट का उससे बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग द मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ द राइट गाइडेंस। कई बार आपने देखा होगा क्लाइंट कुछ डिजाइन बनाते हैं, साइट पर इम्प्लीमेंट होता है पर उन्हें वो सही नहीं लगता, दे ब्रेक द वॉल्स, फिर उसको फिर से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग पहले विजुअलाइज करके उन्हें गाइड कर देते हैं, so that also helps the client in order to push the project and also minimize the efforts and time. So इंडिया में थोड़ा सा अभी प्रो नहीं है लोग कंसल्टेशन की तरफ, कि they think that it's a waste of time, waste of money, कि आप एक कंसल्टेंट रख के उसकी बातें मान रहे हो, तो लगता है हम खुद ही एक्सपर्ट हैं, जरूरत ही नहीं है हमें। So that's the point here. इंडिया में वो है थोड़ा सा, हाँ, अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बट चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली एनसीआर में एवरी हाउस जो भी डिजाइन हो रहा है इज डिजाइन्ड बाय एन आर्किटेक्ट। यस इट इज। बट पहले तो ये होता था कि ठीक है अपने हिसाब से बना दिया, बट नाउ द शिफ्ट इज कमिंग, और आप देखेंगे द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज इवॉल्विंग दीज डेज, जो कोठियां बन रही हैं, जो हाउसिंग बन रही है, तो एक डिफरेंट अप्रोच, वैल्यू फॉर मनी, बिल्कुल उनको वो मिल रहा है, बिल्कुल सारी सर्विस, एंड क्लाइंट्स आर पेइंग वेल, ऐसा नहीं है उसमें। So clients are willing to pay because they have also seen examples की a normal building versus a building that is designed by a designer, तो उसमें दोनों में difference you can easily figure out कि ये एक normal है, this is something that has been designed. So clients are paying for that and they are very happy with the end product. So if a person is building something in Delhi, जैसे बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, so what are the three techniques he can use कि हमारा जो प्रिंसिपल्स लग जाए, जिसमें डिजाइन प्रिंसिपल्स हो, कि हमारी पैसिव जो हीटिंग है वो रहे, डे लाइट आए, वो 3 प्रिंसिपल्स कुछ आप शेयर करो एक घर के लिए। अगर हम घर की बात करते हैं तो एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है टेरेस, विच इज जनरली नॉट अकाउंटेड कि ठीक है टेरेस पर कुछ भी कर देंगे, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट गेन, फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 साइड से घर क्लोज्ड है, सो टेरेस से हीट गेन होना है सारा, बिल्कुल, तो दैट इज वन वे हाउ यू कैन ट्रीट द टेरेस। तो टेरेस पे देयर आर सर्टेन लेयर्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन आवर डिजाइंस दैट रिफ्लेक्ट्स द हीट, तो वो हीट गेन घर के अंदर नहीं आने देता, हीट गेन को अवॉइड करता है। सो द मेजर पॉइंट इज कि अगर आप हीट गेन अवॉइड कर लेते हो तो आपका घर गर्म नहीं होगा, घर गर्म नहीं होगा तो आप एसी टर्न ऑन नहीं करोगे, तो दैट इज अ साइकिल
तो आपको हीट गेन अपना मिनिमाइज करना है। और ये टेरेस पे क्या कर सकते हैं ये मिनिमाइज करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए जैसे क्या होता है, आपने सर्टेन लेयर्स आती है केमिकल की लेयर्स, जिससे वो हीट गेन स्टॉप होता है। एंड यू शुड यूज वाइट कलर ऑन टेरेस। अच्छा, व्हाइट कलर क्या होता है, नेचुरली आप देखेंगे व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर अब्सॉर्ब करता है हीट। राइट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कॉस्ट कटिंग टेरेस पर वर्क करना है या आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना उसमें, तो यू कैन ले डाउन व्हाइट कलर की मोज़ेक टाइल्स। ओके। मोज़ेक टाइल्स वैसे भी रिफ्लेक्टिंग बहुत अच्छा करती है, व्हाइट कलर है तो जितनी भी सनलाइट और हीट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट विल नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द बिल्डिंग। ओके। एंड जनरली क्या होता है, टाइल्स बचती है एंड में कुछ होता है तो लोग उसको भी लगवा देते हैं। एंड यू कैन बाय वेरी जो चीप मोज़ेक टाइल्स आती है, दैट इज ओनली फॉर डे लाइट को कट करने के लिए, नॉट फॉर द एस्थेटिक पर्पस। तो आप वो लगाइए, डार्क कलर्स अवॉइड करें। ओके। क्योंकि जितना डार्क कलर होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो इनसाइड द बिल्डिंग पेनिट्रेट होगी। तो ये टाइल्स भी थर्मल इंसुलेशन का काम करती हैं या सिर्फ ये डे लाइट? नहीं, ये भी करती हैं, क्योंकि आप फिर मदर स्लैब के ऊपर आपकी मड आ जाएगी, देन यू हैव अ पीसीसी, देन यू हैव टाइल्स, तो एक पूरी लेयर फॉर्म हो जाती है। तो इंटीग्रेटेड लेयर है तो वो कट डाउन उससे हो जाता है। ओके ओके। बाकी वी आल्सो रेकमेंड कि आप पॉटेड प्लांट्स यूज करें टेरेस पर। अच्छा। तो आप प्लांट्स यूज करेंगे, उनको वाटर करेंगे तो थोड़ा सा वैसे अपने आप हो वैसे ही उसमें रहेगा। व्हाट एल्स उसके अलावा और क्या करते हैं? टेरेस का तो ये हो गया। बाकी टेरेस का हो गया। अगर जैसे हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, अगर आपका वेस्ट या साउथ डायरेक्शन है, सो उसके प्रॉपर शेडिंग डिवाइस होते हैं। शेडिंग डिवाइसेस जो आपका साउथ के लिए और वेस्ट के लिए जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उसको कट कर, जो वैसे आपने बोला 2 से 6 बहुत, हाँ 2 से 6 जैसे बहुत हीट गेन वाला होता है, राइट। तो उसके लिए वर्टिकल लूवर्स होते हैं। ओके। वर्टिकल लूवर्स इज समथिंग जो आपका हीट गेन अप टू 30-40% रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा। तो आपने गुड़गांव में कुछ बिल्डिंग्स में देखा भी होगा, फसाड की विंडोज पे देयर आर सम वर्टिकल एलिमेंट्स। एल्युमिनियम आई गेस। हाँ, एल्युमिनियम भी होता है और उसमें वुड का मटेरियल भी हो सकता है, दे कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इन आरसीसी। अच्छा। बट वो एलिमेंट एक तो एस्थेटिक इंप्रूव करता है एंड इट आल्सो कट्स डाउन द हीट गेन फॉर द बिल्डिंग। ओके। और आप साउथ के लिए छज्जा इज द बेस्ट एलिमेंट, राइट। तो उसकी भी कैलकुलेशंस होती हैं कि आपको कितना प्रोट्रूडिंग छज्जा चाहिए दैट कट्स डाउन द हीट। अच्छा। जैसे आपकी विंडो है सपोज 6 फीट और आप छज्जा बना दो 6 इंच का, तो लाइट फिर भी जाएगी। तो हमने तो स्टैंडर्ड सुना है कि 2 फुट का छज्जा निकाल दो, तो वो कैलकुलेशन होती है विंडो के हिसाब से कि आपकी विंडो की हाइट कितनी है। ओके। विंडो की जो विड्थ है, छज्जा तो उतना होता ही है। अच्छा। तो विंडो हाइट के हिसाब से छज्जे की कैलकुलेशन निकलती है। ओके। तो उसमें ये रहता है कि ये सपोज आपका विंडो 10 फीट है तो छज्जा हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ 5 फीट, कि उसका आप हाफ तक कवर कर रहे हैं। तो क्या होगा, साउथ सन क्योंकि हायर साइड होता है, आप देखेंगे दिन में सन थोड़ा ऊपर होता है, ईस्ट और वेस्ट के टाइम थोड़ा डाउन होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। तो जो डायरेक्ट लाइट ऊपर से आती है, यू कैन कट डाउन थ्रू अ छज्जा। ओके ओके। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट समथिंग कोई रॉकेट साइंस है इसमें। इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बट यू हैव टू प्लेस द राइट थिंग एट द राइट प्लेस। राइट। तो आपको सही चीज उस सही मौके पर लगानी है। और एज अ होल व्हेन यू प्लग इन, तो इसमें अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, सो देयर आर अराउंड 10 to 12 टेक्निक्स इसमें। वी कैन से कॉल देम टेक्निक्स, वी कैन कॉल देम स्ट्रेटजीज। एक और दे दो। हाँ, तो एज अ होल जब हम इसको सबको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका एंड रिजल्ट जो आएगा दैट कट्स डाउन द पूरा आपका कॉस्ट भी, इम्प्रूव्स द एस्थेटिक्स और एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। बाकी एक टेक्निक ये भी रहती है, जो आपकी ईस्ट विंडोज है उसे आप बड़े से बड़ा रखो, नॉर्थ और ईस्ट को, वेस्ट विंडोज कम से कम रखो साइज। ओके। सपोज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हमें ईस्ट में विंडो देनी है या वेस्ट में, तो आप नॉर्थ और ईस्ट की विंडोज जितनी बड़ी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हीट गेन कभी नहीं होगा। Okay. वेस्ट और साउथ से सबसे ज्यादा होगा। वेस्ट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट गेन वाला जोन। तो वेस्ट में आप अवॉइड करो जितनी कम से कम विंडो कर सकते हो। तो जैसे आप वेस्ट की कम करोगे, ईस्ट की बढ़ाओगे, यू विल हैव अ गुड एम्बियंस कि आपकी विंडोज हैं, बट यू आर रिड्यूसिंग द हीट गेन एट नो कॉस्ट। तो मतलब दिल्ली में बना रहे हैं, फिर वेस्ट में तो आप ओपनिंग छोड़ो ही मत। बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आपकी मजबूरी है, आपको लग रहा है देनी ही पड़ रही है, तो आप दो मिनिमल, और उसमें फिर हम लूवर्स या कैसे भी शेडिंग डिवाइस लगा के उसको स्टॉप कर। अच्छा, एक लूवर्स की बात करी थी कि वर्टिकल लूवर्स हम वुडन भी लगा सकते हैं, एल्युमिनियम भी है, आरसीसी भी आप कह रहे हो, तो ये
कैसे डिसाइड करते हो आप ये तीनों मटेरियल में से कि कौन सा वाला लगाए कौन सा ना लगाए? इसमें डिपेंड करता है आपको लुक एंड फील कैसा देना है बिल्डिंग को, अच्छा, और कॉस्ट उसमें जो आता है, क्योंकि जो वर्टिकल लूवर्स है दैट इज अ कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी एक मेंबर वर्टिकल लगाना है जो हीट कट करे, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, कि हमें एक मेंबर से उसे रोकना है। इट इज नॉट समथिंग कि आप वुड लगाओगे या ये लगाओगे तो कोई उससे कोई उतना इम्पैक्ट आएगा, बट ऑब्वियसली इफ इट्स अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना हीट गेन उससे अवॉइड हो रहा है। बट एज अ होल इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट, यू आर एबल टू कट द हीट, यू आर एबल टू कट द सनलाइट जो आ रही है। तो इट इज अबाउट द मेंबर दैट इज कमिंग इन, नॉट अबाउट द मटेरियल एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसमें आप मल्टीपल मटेरियल्स हैं, मल्टीपल फिनिशेस हैं। आप बहुत बेसिक आप ब्रिक से बना सकते हैं अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। मटेरियल आई कैन चूज एज पर दी कि मुझे अगर लग रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव रखना है तो मैं सस्ता मटेरियल, बिकॉज़ दैट इज अ कांसेप्ट, दैट इज अ स्ट्रेटजी। ओके, दैट स्ट्रेटजी इज नॉट बेस्ड ऑन मटेरियल, राइट। बट उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कलर्स आप लाइट यूज करो, डार्क मत करो। ऐसा नहीं आपने वॉल बना दी उसे ब्लैक कर दिया बहुत, तो भी फिर कहीं ना कहीं वो एक वार्म और हीट वाले फैक्टर इन आ जाएंगे। करेक्ट। तो आपको एक आप मटेरियल कुछ भी यूज करो, यू कैन इवन क्रिएट अ ब्रिक वॉल, उस पे प्लास्टर कर दिया, नॉर्मल पेंट कर दिया जो आप कर रहे हो, बट वो एलिमेंट इटसेल्फ इज द स्ट्रेटजी। करेक्ट। अभी आप बात कर रहे थे कि 8-10 टेक्निक्स ऐसी हैं जी, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या टेक्निक्स हैं जो एक बंदा अगर घर बना रहा है अपना या एक बिल्डिंग बना रहा है तो उसको यूज कर पाए, सो एटलीस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली तो हो ही जाए, उसको भी तसल्ली रहे कि मैंने कुछ किया है एनवायरनमेंट के लिए। सो व्हाट कुड बी दोस टेक्निक्स? जैसे कि हमने अभी 2-3 मेंशन करे हैं, उसके अलावा कोर्टयार्ड हमने इनिशियली मेंशन भी करा था। तो कोर्टयार्ड से क्या होता है, इट इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट की जो आपकी वार्म एयर है दैट राइजेस अप नेचुरली। डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है बिटवीन द कोल्ड एयर एंड वार्म एयर, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, राइट। तो आप कोर्टयार्ड बनाते हैं और उसमें ऊपर अगर ओपनिंग दे देते हैं, एग्जॉस्ट लगा देते हैं या फ्रंट टॉप ओपन कर देते हैं, तो नेचुरली वार्म एयर है ऊपर वो बाहर निकल जाएगी। इन ऑर्डर टू फुलफिल द वॉल्यूम इनसाइड द हाउस, फ्रेश एयर अंदर आएगी, तो आपका नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट होगा। मतलब इट इज नॉट समथिंग कि आपको भाई हमें अगर ग्रीन बिल्डिंग बनानी है तो पता नहीं हमें क्या करना होगा, वो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप आज से 100 साल पुराने घर देखें वही कॉन्सेप्ट है। बीच में कोर्टयार्ड होता था, आप देखेंगे सेंटर कोर्टयार्ड, चारों तरफ स्पेसेस एंड कोर्टयार्ड इज ओपन टू स्काई। तो जो भी वार्म एयर है सेंटर में एक्युमुलेट हुई एंड इट राइजेस अप, तो साइड से फ्रेश एयर अंदर आ गई, सेंटर से बाहर निकल गई, तो अपने आप ही एयर सर्कुलेशन बन गया। पहले के टाइम पे एसीज कहाँ थे, तो लोग नेचुरली वेंटिलेशन को यूज करते थे। उसमें उसके पास क्या करते थे, वाटर बॉडीज लगा देते थे, आपने देखा होगा कोर्टयार्ड के पास okay. या जहां से फ्रेश एयर आ रही है बाहर से, जब हवा आई पानी के ऊपर से तो उसमें ठंडक आ गई, क्योंकि पानी है तो उस हवा में ठंडक आ जाएगी, तो आपकी ठंडी हवा अंदर आ रही है, फ्रेश एयर जब आ रही है। तो इसमें क्या है, क्योंकि एज अ लेमैन एकदम से नहीं समझ आता किस कॉन्सेप्ट को कहाँ इंटीग्रेट करें, बट दिस हैज टू बी डन फ्रॉम द इनिशियल प्लानिंग ओनली। आप ऐसा नहीं घर बन के सोचो अब हम इसमें क्या करते हैं, बाद में नहीं कर सकते, बाद में नहीं होगा। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम इनिशियल स्टेज से ही ये सारे फैक्टर्स प्लग इन करके चलते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट विंडो कम रखो, नॉर्थ और ईस्ट को ज्यादा रखो। अगर आप वेस्ट में विंडो लगा भी रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी का घर वेस्ट फेसिंग है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है वेस्ट की विंडो लगानी है, देन उसके लिए देयर इज अ स्पेसिफिक ग्लास जो मैं SHGC आपको बता रहा था, तो वो डिफरेंट कंपनीज के ग्लासेस आते हैं, राइट। तो वो डे लाइट तो अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, बट दे कट डाउन द हीट, ओके। तो सनलाइट की जो हीट है वो वहीं ट्रैप हो जाएगी, बट जो आपकी डे लाइट है वो अंदर आएगी, तो अराउंड 60-70% डे लाइट अंदर भी आती है और आपका हीट गेन रुक भी गया एंड यू हैव द एस्थेटिक्स। सो दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी कि आप सब कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं, राइट। बाकी इंटीरियर्स में द काइंड ऑफ पेंट, द काइंड ऑफ मटेरियल्स यू यूज, दैट आल्सो डिफाइंस। आपने देखा होगा मार्बल पे आप वॉक करते हैं तो इट फील्स अ बिट कोल्डर कंपेयर्ड टू वुड। तो आप देखेंगे पुरानी जो बिल्डिंग्स है सब में वुड यूज होता था जनरली इन माउंटेन्स, तो वो नेचुरल एक हमारा इंसुलेटर का काम करती है, बिल्कुल। तो सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक टू द लोकेशन। अगर मैं आप जैसे मनाली का एग्जांपल ले, वहां पे वुडन कॉटेज है, उसको मैं लाके दिल्ली में प्लेस कर दूं, दैट इज नॉट सस्टेनेबल, राइट।
सस्टेनेबिलिटी समथिंग जो मनाली में लोकल यूज हो रहा है वो उसको वहीं यूज करो, दिल्ली के कॉन्सेप्ट को दिल्ली के हिसाब से यूज करो. इट शुड नॉट बी कि यूके यूएस में ग्लास लग रहा है आपने यहाँ ग्लास लगा दिया, बट वो ऑपोजिट वर्क कर रहा है इन सबके. अंडरस्टूड. तो वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको स्ट्रेटेजिकली करना है. कॉन्सेप्ट सेम है, हीट गेन हो रहा है ग्लास से, उन्होंने अपने पॉजिटिव वे में यूज कर रखा है. अभी गुड़गांव में इतना ज्यादा ग्लास हो गया है तो सब बिल्डिंग्स में आप देखेंगे एनर्जी कंजप्शन बहुत बढ़ चुका है. तो वो है, मतलब दे आर ऑल्सो यूजिंग डिफरेंट ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है, बट ग्लास का यूज थोड़ा सा अभी रिसेंट ईयर्स में काफी इंक्रीज हुआ है. बिल्कुल. तो क्लाइंट्स के बारे में तो काफी बात हो गई, अब आर्किटेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. जी. जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं आपके पास, आप भी इंटरव्यूज लेते रहते हो, सो आपको क्या लग रहा है कि एक यंग आर्किटेक्ट जो आपके पास आ रहा है काम करने या वो मार्केट में जा रहा है, क्या क्वालिटीज चाहिए उसे, या व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव हिम इफ ही कैन सक्सीड इन दिस इंडस्ट्री? आई वुड से ही और शी शुड बी विलिंग टू वर्क. आजकल सबसे बड़ा मेजर चैलेंज यहाँ आता है कि आप कितना पे करोगे, नॉट कि आप क्या काम करते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच. मतलब मेरा ये था जब इंटर्नशिप किया था कि जो भी काम है मेरे को करना है, वाज नॉट लुकिंग फॉर कि स्टार्टिंग क्या है या कितना पे मिल रहा है. बट आजकल इट इज मोर ऑफ कि हमें ये इतना पे कर रहा है, अदर कंपनीज पेइंग मोर, चाहे उसका काम अच्छा नहीं है. सो स्टूडेंट्स एंड यंग आर्किटेक्ट्स आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि कौन पे ज्यादा कर रहा है. बिकॉज आप देखेंगे इट इज नॉट अबाउट इन द लॉन्ग रन, इट इज नॉट अबाउट आप इनिशियली कितना पे आपको मिल रहा है, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस. तो आई वुड रेकमेंड कि इनिशियली आप सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स भी करो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्टेडियम्स, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, एंड उसमें आप अपनी लर्निंग करो. यू शुड बी फोकस्ड ऑन लर्निंग. ये नहीं कि ऑफिस पहुंचे 9 से 6 टाइम पास करना है, कुछ भी काम करा आ गए. यू शुड सी एट एंड ऑफ द डे आपने क्या लर्न करा. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन थिंग, यू शुड आल्सो थिंक अबाउट कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट उसका बैक एंड प्रोसेस क्या चल रहा है. बिकॉज लाइक आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर, सो आई वाज वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट. तो मेरा काम तो ये था कि मुझे आर्किटेक्चर देखना है, बट नाउ आई एम डूइंग माय ओन प्रैक्टिस. सो आर्किटेक्चर तो उसमें अब एक थोड़ा सा निश रह गया. बाकी आपको प्रोजेक्ट्स लाने हैं, यू हैव टू डील विद क्लाइंट्स, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस, वायबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स इन आते हैं. तो एकदम से सब कुछ लोड आता है. तो इट्स बेटर कि आप इनिशियली काफी अच्छे एक्सपोजर्स लो, एंड यू शुड फोकस ऑन लर्निंग. 2-3 साल आप सोचो ही मत कहाँ क्या पे मिल रहा है, आपका बेसिक एक्सपेंडिचर फुलफिल हो जाए. बिकॉज वंस यू हैव दैट, देन यू कैन पिच कि मेरे पास ये क्वालिटी है, आई हैव दिस नॉलेज, नाउ यू कैन कोट योर प्राइस. So it is good to improve your creativity and productivity. बिल्कुल. आप अपने स्किल सेट पर काम करें. आजकल सॉफ्टवेयर इतने इंक्रीज हो गए आर्किटेक्चर में, सो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ विद ऑल दोस सॉफ्टवेयर्स. योर मैनेजमेंट स्किल्स बिल्कुल बेसिक्स है. मतलब बिजनेस सभी लोग जो आजकल कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो बेसिक्स है, दैट रिमेन्स द सेम. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. So thank you, Bharat. Thank you so much. It was lovely talking to you. थैंक यू सो मच. बहुत सारी इनसाइट्स मिली है, होपफुली हमारी ऑडियंस को भी मिलेंगी. एंड वी होप टू सी यू अगेन. बिल्कुल, है ना. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन योर ऑफिस. Thank you. My It was a pleasure meeting you, and hope to see you soon again. My pleasure. Thank you. Okay, Bye.